اس دن سے پہلے توبہ کر لو میرے دوستو، اس دن سے پہلے کہ ہاں ہم توبہ کرنے کے لائق ہی نہ رہیں۔ اللہ اس دن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ بڑا ہولناک ہے، بڑا خوفناک ہے، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جب تم اللہ کے اس عذاب کو دیکھو گے تو لوگ مدہوش نظر آئیں گے، ہوش میں ہوتے ہوئے بھی لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ کتنا خوفناک دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا۔ اور ہماری بھول تو دیکھو، ہمارا بے وقوف پنا تو دیکھو، ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی کتنے انجان بنے بیٹھے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے میرے نادان بھائی، میرے دوست، میرے پیارے، سنو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بڑا ہولناک ہوگا۔ ہاں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی۔ یہ حال ہوگا، تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کسی حالت میں دکھائی دیں گے۔ لوگ نشے کسی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ میرے دوستو ایسے ہی زندگی نہ گزارو، اس دن سے پہلے توبہ کر لو کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہ کی جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ اور وہ انسان جس کو اللہ نے خود بنایا، ہاں وہ اللہ کا محتاج، وہ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، تم اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ ارے میرے بھائیو، نادان نہ بنو۔ یہ جو زندگیاں گزار رہے ہو، یہ جو وقت گزار رہے ہو، بڑا قیمتی ہے، اس کا حساب دینا ہے، اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ آج ہماری زندگیاں کن پر گزر رہی ہیں، کس کے لیے گزر رہی ہیں؟ ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار، ان میں ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو، سب کے ساتھ زندگی بتاؤ۔ اگر تم واقعی ان سب سے پیار کرتے ہو، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہو، اپنی بیوی سے پیار کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہو، اگر اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہو تو میرے دوستو ان کو اللہ کی طرف لاؤ، یہ بھی اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہیں، اور تم بھی اپنے رب کو بھول رہے ہو۔ وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، تمہارے ہی اعمال ہوں گے، تمہارے ہی اعمال کا سکہ ہوگا، تم نے کیا کرا، کیا لے کر آئے۔ جب اللہ تم سے پوچھے گا کیا کہو گے؟ کیا تم اللہ کو راضی کر بیٹھے ہو؟ کیا اللہ تم سے راضی ہے؟ کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ ارے میرے دوستو، نادان نہ بنو، سب کو مرنا ہے، ہم سب کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرے دوستو، نادان کیوں بنتے ہو؟ اس دن سے پہلے توبہ کر لو کہ وہ دن آ جائے اور ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں۔ آج ہم جن رشتہ داری میں، جس دوستی میں، جس پیار محبت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ نبی کی پتہ، نہ نبی کی سنتوں کی پتہ۔ ارے میرے بھائیو، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ شہادت کے پڑھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، لیکن ہم ہی نادان ہیں، ہم نے ہی اپنی تیاریاں نہیں کی ہیں۔ سنو میرے دوستو، سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
उस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। मेरे दोस्तों, हाँ, ये जो आज हम जिंदगियां गुजार रहे हैं ये बड़ा मुश्किल सौदा है, ये बड़ा ख़तरनाक वक्त है। एक बार ये हाथ से निकल गया फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मातहतों से वाकई ही प्यार करते हो तो इनको भी अल्लाह की तरफ लाओ, तुम भी अल्लाह की तरफ आओ। याद रखो, याद रखो, तुम नहीं होगे और ये दुनिया का निज़ाम जब भी ऐसे ही चलता रहेगा। तुम हो जब भी ऐसे ही और तुम नहीं होगे जब भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी यूं ही बिता दी, यूं ही गुजार दी, अल्लाह को बुलाकर अल्लाह को राज़ी नहीं किया, अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी नहीं बिताई, तौबा से पहले ही मौत आ गई, तो याद रखो कोई दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। जिसके लिए तुम अपनी जान तक लुटाते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बेटी बेटे हैं, हाँ, कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई काम नहीं आएगा। अगर अल्लाह को राज़ी नहीं किया है, अल्लाह को नाराज़ किया है, इसकी सज़ा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। जिसने अल्लाह को नाराज़ किया वो नाकाम है, उसके लिए बड़ी नाकामी है, उसके लिए बड़े दुख की बात है। जिसने अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी गुजारी बड़ा घाटे का सौदा है, बड़ा घाटे का सौदा है। मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह ताला का इरशाद है, उस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद इसके कि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। ये कौन कह रहा है मेरे दोस्तों, ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला का इरशाद है, उस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद इसके कि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। उस रोज़ मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा कि अज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और ख़ानदान को जिनमें वह रहता था और तमाम अहले ज़मीन को अपने फ़िदिये में दे दे और ये फ़िदिया देकर अपने आप को छुड़ा ले। ये हरगिज़ नहीं होगा, ये हरगिज़ नहीं होगा। मेरे दोस्तों, क्यों अनजान बने बैठे हो, क्यों अनजान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हो? जब अल्लाह ताला का इरशाद है दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद इसके कि एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, देख रहे होंगे। उस रोज़ मुजरिम इस बात की तमन्ना करेगा कि अज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और ख़ानदान को, जिसमें उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी, सारी ज़िंदगी इनके लिए गुजार दी, हाँ, अगर इनको देकर भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा, मेरे दोस्तों, ये हरगिज़ नहीं होगा, ये हरगिज़ नहीं होगा। मेरे भाई, अल्लाह से तौबा कर लो, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। आज इतनी ज़िंदगी हमारी गुजर चुकी है, जाना कितनी हमारी उम्र हो गई हैं, हमने कभी अपने अल्लाह को याद ही नहीं किया, कभी नबी की सुन्नतों को ही नहीं जाना, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की, अल्लाह के हुक्म को ही नहीं माना, अल्लाह की बातों को ही नहीं जाना, अल्लाह को ही नहीं पहचाना, नबी को ही नहीं जाना, नबी की बातों को ही नहीं सुना, नबी की सुन्नतों को नहीं अपनाया। अरे मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी नाकामी में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है और हमें एहसास तक नहीं हो रहा है, एहसास तक नहीं हो रहा है। जैसे ज़िंदगी इंसान गुजार रहा है, हमेशा याद रखो, जैसी ज़िंदगियाँ ये गुज़र रही हैं, जैसी ज़िंदगियाँ हमारी गुज़र रही हैं, अल्लाह ना करे अगर हमारी तौबा से पहले मौत आ गई, क्या होगा हमारा? हमने कितनी नमाज़ें पढ़ ली हैं, कितना रब को राज़ी कर लिया है, कितने रब के हुक्मों को पूरा कर लिया है और कितने नबी के तरीके पर चल रहे हैं, कितने अपने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई सुनो, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कुछ ये जालिम लोग
कर रहे हैं, जो कुछ ये जालिम लोग कर रहे हैं, उनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ करने की वजह से बेखबर हरगिज़ ना समझो, बेखबर हरगिज़ ना समझो। अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्तों, जो ये जालिम लोग कर रहे हैं ये ना समझो कि अल्लाह ताला इनकी पकड़ नहीं कर रहा है, अल्लाह इनसे बेखबर है, अल्लाह इनको जानता नहीं है। ये नहीं समझो, ये नहीं समझो, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी, और वह हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए हुए दौड़े जा रहे होंगे, और आंखों की ऐसी टकटकी बंधेगी कि आंख झपकेगी नहीं, और उनके दिल बिल्कुल बदहवास होंगे। अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को पकड़ करने से अनजान न समझो, वो भी पकड़ नहीं कर रहा है, अब इसने मोहलत दे रखी है, तो यूँ मत समझो अल्लाह अनजान है, अल्लाह देख नहीं रहा है। जब अल्लाह उनकी पकड़ करेगा उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ, उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है। मेरे दोस्तों, अनजानों की तरह ज़िंदगियाँ ना बिताओ, अपने रब की तरफ आ जाओ, अपने रब के हुक्मों को पहचानो। अल्लाह हमसे क्या कह रहा है? अरे हमने तो कलमा पढ़ा है, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं। जब अल्लाह को मानने वाले हैं तो मेरे दोस्तों अल्लाह की क्यों नहीं मानते हैं? अल्लाह की क्यों नहीं मानते हैं? अरे अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी बिताओ। हमारी इतनी उम्रें हो चुकी हैं, हम जना कब से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। 5 वक्त की ही तो नमाज फ़र्ज़ है, 1 वक्त की 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी गुज़र रही है, गुज़रती रहेगी। हाँ, मौत का किसी को पता नहीं है। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, अगर अल्लाह को वक्त ही तुमसे लेना होगा, मेरे दोस्तों कितने लोग अस्पतालों में वक्त लगा रहे हैं, कितने लोग मोहताज हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। अरे कितने लोगों में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो खड़े हो सकें, कि वो खड़े हो सकें। तुम किस चीज़ से अनजान हो? ऐसा वक्त आए कि हम अल्लाह की इबादत ना कर सकें, अल्लाह से मोहब्बत ना कर सकें, अल्लाह से मोहब्बत का इकरार ना कर सकें। उस दिन से पहले पहले, उस वक्त से पहले पहले अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अल्लाह से तौबा कर लो, अपने अल्लाह से माफ़िया मांग लो। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा ही माफ़ करने वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। हाँ, उस दिन से पहले पहले अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, उस दिन से पहले पहले अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, अपने अल्लाह से तौबा कर लो, अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लो। मेरे दोस्तों, ये बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, सबको मरना है, हम सबको मरना है। किसी को मौत का पता नहीं है, किसी को किसी के वक्त का पता नहीं है। अपने अल्लाह को बेखबर ना समझो, अपने अल्लाह को किसी भी चीज़ से बेखबर ना समझो। वो सब जानता है, सब देख रहा है, बस उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए मोहलत दे रखी है। उससे पहले पहले तौबा कर लो। बड़ा बदबख्त है वो इंसान, बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसने अल्लाह से मरने से पहले पहले तौबा नहीं की। अरे मेरे भाइयों, तुम क्या सोच रहे हो? क्या सोचकर ज़िंदगी गुजार रहे हो? अरे किस चीज़ से अनजान हो? क्यों बेखबर हो रहे हो? तुम्हें अल्लाह के इरशादों का पता नहीं है, अल्लाह के इरशाद नहीं पता। सुनो, अल्लाह ताला का इरशाद है, और उस दिन आमाल का वज़न एक हकीकत है, और उस दिन आमाल का वज़न एक हकीकत है। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा, और जिनका ईमान व आमाल का पल्ला हल्का होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वे हमारी आयतों का इनकार करते थे। हाँ, वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, अल्लाह की बातों को ही नहीं मानते थे, अल्लाह के हुक्म ही पूरे नहीं करते थे। अरे उस वक्त क्या होगा जब आमाल तराजू में रखा जाएगा, तोला जाएगा, जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, मेरा हिसाब लिया जाएगा। अगर हम उस वक्त नाकाम हो गए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों अपने रब को राज़ी कर लो, रब को राज़ी कर लो। आमाल का वज़न एक हकीकत है। बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जो अल्लाह को राज़ी कर कर चला गया। अल्लाह उससे राज़ी होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहा होगा, अल्लाह उससे खुश होगा। बड़ा बदबख्त है वो इंसान, अपने आप को नाकाम करा,
अपने नबी को उदास करा, अपने नबी के भी हुक्मों को तोड़ा, अपने अल्लाह के भी हुक्मों को तोड़ा, अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ा। अरे कितना बदबख्त इंसान है वो। उसे अल्लाह की बातों को बताया गया, नबी की सुन्नतों को बताया गया, अल्लाह के हुक्मों पर चलने के तरीके बताए गए, लेकिन वो जानते हुए भी अनजान रहा। कितना नाकाम है वो इंसान, कितना बदबख्त है वो इंसान जिसने सब कुछ जानते हुए भी इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी गुजारता रहा। अरे किस दिन की तलाश में हो, किससे मोहब्बत कर रहे हो? आखिर अल्लाह के सिवा कौन तुम्हारा मददगार है? कौन बचा सकता है तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के जलाल से, अल्लाह के गुस्से से? अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह नाराज़ हो गया किसी शख्स से तो उस शख्स को अल्लाह के अज़ाब से कौन बचा सकता है? कौन उसकी सिफारिश करेगा? आप करोगे, मैं करूँगा, हमारे बाप दादा करेंगे, हमारे घर वाले करेंगे, भाई बहन करेंगे, ये रिश्तेदार, ये दोस्त जो मरने के बाद भुला देंगे, ये वहाँ मरने के बाद काम नहीं आएंगे। आमने सामने खड़े होने के बाद भी कोई किसी के काम नहीं आएगा। किससे बेखबर हो? किसके लिए कर रहे हो अपनी ज़िंदगी? किसके लिए बर्बाद कर रहे हो? मेरे दोस्तों, अगर वाकई किसी से मोहब्बत करते हो, अपने आप से करते हो, अपने रब से करते हो, अपने नबी से करते हो, तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म पर बिताओ, अपने नबी के तरीके पर बिताओ। याद रखो, अगर अल्लाह को नाराज़ कर कर ज़िंदगियाँ गुजारोगे तो अल्लाह फाक़ों में डाल देगा, परेशानियों में डाल देगा। और अल्लाह ने इतनी मखलूक बनाई है, अल्लाह सबको खिलाने वाला है, सबको खिलाने वाला है। वो तुमसे कैसे अनजान हो सकता है? वही तुम्हें खिलाएगा और वही तुम्हें खिलाता है। बस हमारा यकीन कमज़ोर हो रहा है, हमारे ईमान बड़े कमज़ोर हो रहे हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो। वो बड़ा रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। मरने से पहले पहले अपने रब से तौबा कर लो। जिस शख्स ने अल्लाह को राज़ी कर लिया वो कामयाब है, वो कामयाब है। और इस दुनिया से कितने बड़ी गुनाह अल्लाह जन्नत देगा। अच्छे अमल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा रहने के बाग होंगे, हमेशा रहने के बाग होंगे। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में, इस ख़त्म होने वाली दुनिया में, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में क्या ढूंढ रहे हो? क्या खुशियाँ तलाश कर रहे हो? असल खुशियाँ तो जन्नत में है, अपने रब को राज़ी करने में है। वहाँ ना दुख है, ना थकन है, ना नींद है, ना परेशानी है, ना गम है, ना किसी किस्म की टेंशन है। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? असल चीज़ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, सुकून, राहत, इत्मीनान, वो सब तुम्हें अल्लाह ही के पास मिलेगा, जन्नत में मिलेगा, अपने रब को राज़ी कर कर मिलेगा, नबी के तरीके पर चल कर मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर अपने अल्लाह को राज़ी कर कर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हो तो बड़ी खुशखबरी है तुम लोगों के लिए, बड़ी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब को राज़ी कर रखा है, अपने नबी के तरीके पर चलते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी है। उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सब से राज़ी रहे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन जिसने अपने रब को नाराज़ करा है, मेरे भाइयों, तौबा कर लो, अपने रब से तौबा कर लो। तुमने जितने भी गुनाह किए होंगे वो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। वो तो कहता है, मेरे बंदे तू ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दे, मुझसे एक बार कह दे अल्लाह मेरी तौबा, मैं माफ़ कर दूंगा। इतनी मोहब्बत करने वाला अल्लाह कह रहा है मैं सब माफ़ कर दूंगा। अरे उसे छोड़कर किधर जा रहे हो? किधर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हो? मेरे दोस्तों, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ। तौबा कर लो अपने अल्लाह से, अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।